Focus. Ideate. Innovate. Enable. RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, South Zone. Namaskar, hello and a very warm welcome to RR Kabel presents CNBC Awaaz 14th Real Estate Awards and Conclave, South Zone, powered by News 18 Network, associate partner RR Parkon and knowledge partner Knight Frank India. मैं हूं स्वाति शाही और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। रियल एस्टेट अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव देश के उन चुनिंदा अवार्ड शोज में से है जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित और भरोसेमंद माने जाते हैं। आज देश की आईटी कैपिटल यानी बैंगलोर में हम इसके साउथ जोन एडिशन के साथ आए हैं, जहां आज की शाम हम उन बेहतरीन प्रोजेक्ट्स और डेवलपर्स को सम्मानित करेंगे जिन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन साबित हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ देर किस बात की, आज की शाम की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी बाजार के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल को कि वो मंच पर आए और इस खास शाम की शुरुआत करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अनुज सिंघल। Good evening, or shall I say Subha Sanje Bangalore. Pardon me if I got it wrong, I tried. This, of course, is the 14th edition of our awards. We've been doing it for last 16, 17 years. It's the most trusted award and in fact the only existing real estate award that we have in the industry. Now, this award is mainly categorized in three categories. We have residential, we have commercial, and we have retail. You know, India is such a large country, right? And every zone is different. So what we have tried to do is, for the sake of all-round representation, we have further broken these awards into regional awards. The winners from all the zonal awards will then be able to participate into the Grand National Awards. RR Kabel has been our partner since inception. Knight Frank India is our knowledge partner. This year we have received 10,000 plus entries from entire countries. Sit back and enjoy. Thank you so much. धन्यवाद अनुज। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी आरआर काबल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गोपाल काबरा जी को आज के ओपनिंग एड्रेस के लिए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएनबीसी आवाज़ की टीम, रियल एस्टेट डेवलपर, पीपल फ्रॉम many other organization, department people, member era. Someone was asking me that why you are doing so award. Dear friends, the objective of starting this real estate award, that time this real estate sector was not a mature sector. So we as a company thought, we must support this noble cause and how can this real estate business can become a very organized, very transparent and branded. And this helps many developers from this RR Kabel CNBC Awards, Real Estate Award. People like to showcase in their office. People like to put on hoarding so that people can trust. I would like to tell that South India has given India's best of best real estate developer. Now, since sector is becoming mature, so this is a journey I believe that from unorganized to organized, organized to brand, and brand to now trusted brand. Same thing in our category, wire and cable. It's unorganized to organized, organized to brand, and brand to trusted brand. See, I would like to tell here that Ireland has become the first country in the world which stopped totally not only PVC wire, but PVC cable also. Those who won, I wish all the best. But those who have not won, better try again next year. It does not mean that those who have not won the award, they have not done the good thing. But someone is did little better than you. All the best. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की शाम के पहले पैनल डिस्कशन की, जिसका टॉपिक है इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज साउथ इंडियाज रियल एस्टेट आउटलुक। और इस पैनल को मॉडरेट करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सीएनबीसी आवाज के रियल एस्टेट एडिटर विपिन भट्ट को।
जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी उनके esteemed panelists को के श्रीराम, National Executive Committee member, CREDAI, and former National Vice President, Builders Association of India; G.R. Reddy, member, RERA, Karnataka; Arpit Mehrotra, MD, Colliers, India; Ramita Arora, Managing Director at Cushman and Wakefield; Shyam Reddy, President, Naredco, Karnataka; Gulam Zia, Executive Director, Knight Frank, India; और श्री गोपाल काबरा जी को एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पे। जोरदार तालियों से सभी पैनलिस्ट का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा आप सब जानते हैं कि आज की शाम सम्मान की शाम है। उन लोगों का, उन डेवलपर्स का, उनके काम का सम्मान होने जा रहा है जिन्होंने बहुत लगन से, मेहनत से अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई, लोगों के लिए बनाई, उनको उनके सपनों का आशियाना दिया। जैसा हम कहते हैं कि घर सिर्फ एक चार दीवारी नहीं है, उसमें लोगों के सपने बसते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर फुलफिलिंग द ड्रीम्स ऑफ द पीपल बाय गिविंग देयर ब्यूटीफुल हाउसेस। किससे पूछूं मैं पहला सवाल? गुलाम साहब, आप सबसे एक्सट्रीम पे बैठे हैं, लेकिन एक पर्सपेक्टिव आपसे लेना चाहूंगा। अगर साउथ का कंपैरिजन करें नॉर्थ से, तो कौन इस समय आगे? बहुत ही बिकट सवाल आपने मेरे सामने रख दिया है, और चूंकि हम साउथ में बैठे हैं तो नॉर्थ के खिलाफ कुछ भी बोलो चल जाएगा। दिल्ली का जो मार्केट है, ख़ास तौर से हम नॉर्थ कहते हैं, उसमें कुछ एक मार्केट्स हैं जैसे एनसीआर, जयपुर, चंडीगढ़ वगैरह। जीएफसी जिसे कहते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले 2007-8 के दरमियान दिल्ली इंडिया का सबसे गर्म, सबसे टॉप हॉट मार्केट हुआ करता था। उसके बाद जो उसमें गिरावट आई है, तकरीबन 10 साल तक कंटिन्यूस गिरता चला गया, और आज वो दोबारा उठने की कोशिश में है। हम साल डेढ़ साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। साउथ का मार्केट, अगर मैं बेंगलोर की मार्केट की भी बात करूं, तो ये देख लें कि ये अंदाज़न ये 10-15 साल में तकरीबन डेवलपर्स के 50 से 60 हज़ार मकान लगातार बिकते चले आए हैं हर साल। जबकि दिल्ली जो जीएफसी से पहले 1.25 लाख अपार्टमेंट बेच रहा था, वो 15 से 20 हज़ार अपार्टमेंट तक आ गया। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन भारत को बेंगलोर के डेवलपर्स ने सिखाया है। तो बहुत बहुत तालियां साउथ के लिए, बेंगलोर के लिए, क्वालिटी देने के लिए रियल एस्टेट के अंदर। राइट अर्पित, ये तो सर ने एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव बताया, नंबर्स के टर्म्स में क्या कह रहा है इस समय नॉर्थ वर्सेस साउथ? गुलाम साहब काफी एक्सपीरियंस आदमी है, अगर ये जब बोलते हैं तो नंबर्स बिल्कुल सही बोलते हैं। द ओनली डिफरेंस इज साउथ में एंड यूजर्स आते हैं, नॉर्थ में इन्वेस्टर्स मोस्टली आते हैं। व्हेन इट कम्स टू रेसिडेंशियल, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के अगर बारे में सोचें, अगर जो हम इंडिया में आते हैं, बैंगलोर उनके लिए इंडिया है। That is how they understand India. India is Bangalore for them. Being a North Indian, मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में, South market is definitely better. श्रीराम साहब, क्योंकि आप खुद मैसूर से हैं, बेंगलोर को भी उतना समझ रहे हैं, या मैं पूरे कर्नाटक की बात करूं, तो जब हम देख रहे हैं नॉर्थ या दिल्ली मार्केट का, जैसे गुलाम साहब ने भी जिक्र किया, वाकई मतलब पागलपना है इस वक्त वहां पर, जिस तरह से प्रॉपर्टी बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं। क्या यहाँ पर भी उसी तरह की फ्रेंजी है? साउथ का मार्केट हमको समझना है तो थोड़ा आंकड़े देखना पड़ता है। Very important aspect here is if you look at per capita GDP in South India, it's anywhere between 2 lakhs and 2.8 lakhs. If you look at debt to GDP ratio of states, by and large, the southern states are within that RBI and mandated 25%. ये organized real estate एक 5% भी नहीं है जो पूरा real estate है। So जो भी हम देखे हैं ना, वो ट्रेलर भी नहीं है। अभी भी ट्रेलर आने वाला है, मेन पिक्चर तो बहुत बड़ा है। तो जैसा राम साहब कह रहे हैं श्याम सर कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए आप क्या कहेंगे इस वक्त, बेंगलुरु, कर्नाटका या बाकी जो भी आप होल साउथ को ले सकते हैं? As most of the people said, South India, we always go, and it's an organic growth. So we are never like going zoop, 90 degrees up and then coming back, crashing down. I would say that the sales in the last year has been wonderful. And going forward this year also, we are doing extremely good. Before RERA, if somebody was doing a 2-acre project, अरे बाप रे, अच्छा कर रहे हैं, अरे मस्त है. The government policies are helping either in the South India extremely, and I mean especially in Telangana and also the Bangalore, we are doing extremely good. Some of them because of the RERA. After the RERA, it has become more and more organized.
रमिता, मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि अभी हमने बात की रेजिडेंशियल की, अर्पित ने उसमें थोड़ा सा कमर्शियल एंगल भी डाला। हमेशा मेरे मन में एक सवाल रहता है, कमर्शियल कैसा चल रहा है उसके हिसाब से रेजिडेंशियल को आंकते थे। अच्छा, कमर्शियल में बढ़िया हो रहा है, इतने 1000 स्क्वायर फीट बिक गया, इतनी लीजिंग हो गई, अब रेजिडेंशियल अच्छा चलेगा। इस समय जिस तरह से रेजिडेंशियल बिक रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि नाउ इट्स डीकपल्ड विद द कमर्शियल? कोई लेना देना या डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, कमर्शियल अपनी जगह जैसा कर रहा है, रेजिडेंशियल की अपनी डिमांड है, अपने ड्राइवर्स हैं और अपने खरीदार हैं। But I'll just state a few facts which I think everybody would agree with. One is 2008-9 when the GFC happened and when market started developing after that, residential took almost a decade to come back, right? 2012 to 2022, the market was down. So residential really did well post-COVID. However, from a commercial standpoint, 2014-2015 के बाद से we started seeing the development coming in. But one thing we need to keep in mind when we are talking about residential following commercial, it's only limited to the urban sectors. अभी आप इंडिया में देख लीजिए, 727 million square feet is the total grade A leasable stock. It is a huge number. जैसा श्याम जी ने भी बताया, इट्स अ वेरी स्ट्राइकिंग फैक्ट कि आफ्टर रेरा एक बहुत बड़ा चेंज आया है, खासतौर पे रेजिडेंशियल मार्केट में। डेवलपर्स का भी पूरा अप्रोच बदला है, खरीदारों का भरोसा बढ़ा है। दक्षिण भारत में वैसे भी पहले मैंने इतनी शिकायतें नहीं सुनी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ पर भी क्या लोगों को शिकायतें हैं, और हैं तो किस तरह की, और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? When it was introduced, interestingly, it is through a parliamentary act with leverage for state governments also to form the rules based on the local conditions, but it is created as autonomous authority, independent of either, to take independent decisions, and the mandate given is to do hand-holding and bring in transparency and accountability into real estate. Years are progressing. It is relatively very young act, 2017, 16 rather. Karnataka is one of the first states to adopt it without any resistance and formed very nice act and rules, implemented very smoothly, thanks to all the real estate people here and outside. So whatever bad name coming, despite all the good work done by so many builders, is because of some ruthless people having only profit motive. Of course, cost and quality go together. There is no shortcut for getting quality without increasing the cost. काबरा साहब, एक अब अहम सवाल, आप जिस कारोबार में हैं और जिस तरीके से आपका कारोबार पूरे देश में है, तो दक्षिण में और उत्तर में जब आप बिजनेस करते हो, वो तार है या पार्किंग है, कुछ भी है, आपको क्या डिफरेंस अप्रोच में महसूस होता है? क्योंकि एक अलग पर्सपेक्टिव होगा जो आप देंगे। देखिए, ऐसा है कि इसमें बेसिक प्रॉब्लम हमारी जो प्रोडक्ट में है ना, वो बिहाइंड द वॉल है, इसलिए किसका ध्यान नहीं जाता है। वो न रेरा उस पर ध्यान दे रहा है, न फायर ब्रिगेड ध्यान देता है, न बिल्डर ध्यान देता है, न आर्किटेक्ट ध्यान देता है। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। उल्टी का मैं बताता हूँ, वायर कैटेगरी के हिसाब से बेंगलोर में सबसे चीपेस्ट माल बिकता है और बाकी जगह ज़्यादा बढ़िया बिकता है। बाकी चीज़ में लुक वाइज, कल्चर वाइज साउथ अनबीटेबल है। एक अंतिम सवाल मैं काबरा जी आपके पास लेकर आऊंगा कि हम सब मिलके आपको 5 करोड़ रुपए देते हैं, जो कि नहीं देंगे लेकिन समझ लीजिए देते हैं, आप उसको कहाँ निवेश करेंगे? उत्तर में कि दक्षिण में? और दक्षिण में तो कहाँ? उत्तर में करूँगा तो दक्षिण में, एंड आई विल प्रेफर हैदराबाद। क्या बात है? आई बिलीव हैदराबाद स्टिल एट अ रीजनेबल प्राइस। चलिए, तो ये सवाल मैं क्विकली सबसे पूछ लेता हूँ। मैम आप? I think Bangalore. अर्पित आप? मैं तो डेफिनेटली बैंगलोर में करूंगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा कंट्री का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंशियल इज इन बैंगलोर, विच इज 5 to 6%. ठीक है, और आप दोनों तो बनाते ही हैं, फिर भी कोई अलग शहर है क्या दिमाग में? Sir, I'm born and brought up in Andhra, but like I'm settled in Bangalore. I will only invest in Bangalore. बैंगलोर को बहुत वोट्स आ रहे हैं। Yes, yes. Even I will second whatever they're all saying. Definitely, it's Bangalore. ठीक है, रेड्डी साहब फाइनली आपका? Sir, we are ending with Jaipur and Delhi, not recognizing the Switzerland new coming up at Kashmir. I would definitely look at कश्मीर। Kashmir. क्या बात है। लेकिन यहाँ इस पैनल पे तो ज्यादातर वोट जो है 70 to 80% वो गए हैं बेंगलोर को, एक हैदराबाद को भी मिला है। बहुत बहुत बधाइयां हैं दक्षिण भारत आपको, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई,
एवरीवेयर आज सभी जगह के डेवलपर हमारे बीच में हैं और आपके अच्छे काम का यहाँ सम्मान होने वाला है। तो आपको एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयाँ, और ये बातचीत भी काफी अच्छी रही, और मेरे सभी को पैनलिस्ट को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में एक बोल दूं जी सर, साउथ झुकेगा नहीं, सिंस यू कंपेयर्ड विद नॉर्थ, साउथ इज नॉट गोइंग टू झुकेगा नहीं बस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने इतने मन लगा के हमें सुना, थैंक्स। RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, South Zone. RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, South Zone. Well, moving ahead, let's talk about an important aspect of real estate sector, which is responsible corporate citizen, जिसके होने के नाते आरआर काबल और न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ मिलकर फायर सेफ्टी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए रियल एस्टेट अवार्ड्स के इस मंच को चुना गया है और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस खास पैनल का संचालन करने के लिए मैं एक बार फिर से स्टेज पे आमंत्रित करूंगी विपिन भट्ट को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, और साथ ही मैं एक बार फिर से आमंत्रित करूंगी श्री गोपाल जी काबरा का, मैनेजिंग डायरेक्टर आरआर काबल से। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मित्रा श्रीपदा, एसोसिएट डायरेक्टर एट डिजाइन ट्री सर्विस कंसल्टेंट्स। जोरदार तालियों से हमारे पैनलिस्ट का स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच। और एक बार हम फिर मंच पे, लेकिन एक छोटे पैनल के साथ। ये फायर सेफ्टी का पैनल है और बड़ा इंपॉर्टेंट पैनल है। हमने पिछले एक दो सेशन से इसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन सभी लोगों से काफ़ी तारीफ मिलती है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है कि आप ऐसी बातें भी ज़रूर करें। काबरा साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। अगर मैं साउथ की बात करूँ तो आप क्वालिटी की बात कर रहे थे, लेकिन आपने ये भी कहा कि बेंगलुरु में इटसेल्फ बहुत अच्छी तार यूज़ नहीं होती, या फायर सेफ्टी नॉर्म्स को उस तरीके से अभी भी कंसिडरेशन में नहीं लाया जाता। तो जब क्वालिटी आ रही है तो उसमें ये चीज़ क्यों पीछे छूट रही है? हम उसको दो भाग में कर रहे थे, एक होता है रेसिडेंशियल, एक होता है कमर्शियल। उसको दो में करते तो बेटर रहेगा। कमर्शियल में देखा जाए तो स्पेस में आपका एवरेज अच्छी ऑफिस बनती है 40 स्क्वायर फीट में एक आदमी बैठता है, मीडियम में 60 और एवरेज में 80 स्क्वायर फीट में एक आदमी बैठता है। 2010 में BIS से गलती हुई कि बिल्डिंग वायर और पैनल वायर को एक में कर दिया, और 80% इलेक्ट्रिशियन आज भी दांत से तोड़ता है। उसके बाद अच्छे इक्विपमेंट भी हो तो जो 1.5 स्टैंड होते हैं तो 2 स्टैंड यहाँ से टूट जाता है, 2 स्टैंड यहाँ से टूटता है। और कोई जरूरी नहीं कि जो यहाँ टूटना होता है, तो बीच का जो होता है 1.5 बॉडी होता है। तो क्या होता है, आदमी लेता है 2.5 स्क्वायर में, पैसा 2.5 स्क्वायर का, वापरते वापस 2 हो जाता है। तो टेक्निकली वहाँ गलत। चलो ठीक, उसको ठीक करना। फिर सवाल आता है इंसुलेशन का। लोगों को लगता है कि FRS वायर यूज़ किया, अरे बहुत बढ़िया किया, देयर इज अ कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर एनीवन। लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि FRS वायर भी दुनिया में कहीं नहीं है, ये हमारी उपज है। एक भी देश अगर FRS वायर हो तो मैं कंपनी अपना 10% स्टेक डोनेशन देने को तैयार हूँ। कहीं नहीं है। हम लोग नई टेक्निक लेके आ रहे हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ में, विल यूज फर्दर प्राइस। मित्रा साहब जो बता रहे हैं यहाँ, काबरा साहब, तो थोड़ी सी तकलीफ देने वाली बातें हैं, लेकिन जब हम कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं या चीज़ें करते हैं, बाहर से तो जो हम देखते हैं उसमें दिखता है कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, सब कुछ है। अंदर की चीज़ों पे उतना ध्यान जाता नहीं, उतना मालूम भी नहीं होता। लेकिन जब आप लोग डिज़ाइन करते हैं तो क्या फोकस में रहता है? क्या ये सारी चीज़ें थोड़ी पीछे चली जाती हैं, या फिर क्या कॉस्ट इशू बनती है, क्या प्रॉब्लम होती है? What I can just say is now we are striving towards the skyscrapers, because 2009 का पहला ट्रेंड डिफरेंट है सदर्न मार्केट में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न रीजन वेयर मुंबई इज ऑलवेज हैविंग ए वेरी हाई राइज बिल्डिंग्स, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सदर्न रीजन, बेसिकली now the trend is between before 2009 and after 2009 there is a difference is there, because now we are talking about the skyscrapers in southern part of the India. When we are talking about the skyscrapers, the safety is predominantly important. मैं अगर स्पेसिफिकली स्टेट वाइज, आपने कहा आंध्रा में आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, स्टेट वाइज कोई गाइडलाइंस है इन चीज़ों को लेकर? Yes, very much there. Basically, NBC is a generic standard which normally ये पूरा इंडिया के लिए सजेस्ट करता है, मगर स्टेट अथॉरिटीज आर द प्रेसिडिंग फैक्टर where they can take over the NBC kind of it. बेंगलुरु में अलग सा स्टैंडर्ड रहेगा, हैदराबाद में अलग सा स्टैंडर्ड है, चेन्नई में अलग सा स्टैंडर्ड, केरला इज अलग सा स्टैंडर्ड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज स्टैंडर्ड्स व्हिच वी फेल्ट बेसिकली इज with respect to the conventional way of doing it.
Kerala and Karnataka stands on first, basically. पर कोई खास टिप जो आप देना चाहें, मोड़ के खास देखो, tip जला उसको के दे- देखो, कुछ हाँ, हाँ। एडवर्टाइज आते हैं, वायर डजंट कैच Actually, फायर। नहीं नहीं, बेसिकली तो इंडिया में इतनी गलत एड आती है, वायर डोंट कैच फायर। पहली बात तो ऐसा कोई वायर नहीं, इसमें आग नहीं लगती है। इसके सामने हमने अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर लेना वो पड़ा कहते हैं कि अकल मत लगाओ, हमारा वाला नहीं, वायर नहीं। ले लो। तो उसमें हमने ये दिया कि ऐसा कोई वायर नहीं होता है जिसमें आग नहीं लगती है, झूठ है। हम ये बोलते हैं ऐसा ये वायर है जिसमें धुआं नहीं होती है। सी आप समझिए, आग धुआं से बढ़िया खतरनाक चीज कोई नहीं है। मित्रा साहब, आप क्या सजेशन देंगे, वेदर इट्स डेवलपर और एन इंडिविजुअल, जब भी आप अपने घर को प्लान कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड ऑल दिस, क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, क्या किससे कंसल्ट करना चाहिए? पहले इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज ब्रिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट। ओके, कि हमारे इंडियन का स्टाइल में कितने पे देता है, वो डिफरेंट मार्केट है। मगर व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट, व्हेन यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ बिग डेवलपमेंट्स, क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी में लेके पहले से मार्केट में सस्ता भी मिलेगा। मार्केट में जो जैसा कावरे जी बोल रहा है, फैक्टर्स, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये बातचीत हमारे साथ सुनने के लिए। RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, South Zone. Focus. Ideate. Innovate. Enable.